Welcome back, students, to the second lesson of mathematical physics. And today we are going to talk about the queen of mathematics and the queen of physics as well, called as trigonometry. Trigonometry finds wide applications in not only solving the problems of mathematics, but is used abundantly in physics as well. Becoming good at trigonometry is an important foundation of becoming good at physics. So let us understand the kind of trigonometric equations and functions that we would be needing in our study of physics. So first thing first, trigonometry we all know is a study of a right angled triangle. ये जो एंगल थीटा होता है वो डिसाइड करता है कि बेस किसको बोलेंगे और परपेंडिकुलर किसको बोलेंगे, और हाइपोटेन्यूज तो लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्रायंगल की, वो तो फिक्स्ड है. सो हाइपोटेन्यूज इज अ लॉन्गेस्ट साइड दैट इज फिक्स्ड, तो इसका तो पता ही हमको. जो थीटा के साथ वाली साइड होती है, दिस साइड इज कॉल्ड एज द बेस, एंड थीटा के जो ऑपोजिट साइड होती है एंगल के ऑपोजिट, दैट्स कॉल्ड द परपेंडिकुलर साइड. नाउ अगर थीटा एंगल ये है, एल वाला एंगल थीटा है, तो थीटा के ऑपोजिट वाली साइड दिस इज द परपेंडिकुलर साइड, एंड थीटा के साथ वाली साइड इज द बेस, एंड ऑफ कोर्स द लॉन्गेस्ट साइड इज द हाइपोटेन्यूज. In every right angle triangle, the Pythagoras theorem is always obeyed. That is, the square of the hypotenuse is always equal to the base ka square plus perpendicular ka square. In a right angle triangle, the second thing we understand is that the ratio of the sides represent something very interesting. The ratio of perpendicular to hypotenuse, opposite side of theta, to hypotenuse is called sin theta. Cos theta is base upon hypotenuse, adjacent side, and tan theta is opposite side upon the adjacent side, that is the perpendicular upon the base. So in this triangle, if I am talking about angle A, this is the angle I am referring to. So B would be the base and A would be the perpendicular. So sin A for this angle A, sin A will be perpendicular upon hypotenuse, that will be A by C. Cos A decide करेगा base होगा B, that will be B by hypotenuse, that's C. And tan A would be perpendicular upon the base. गाना था ना, some people have curly black hair to present beauty, और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. तो वो गाना 10th क्लास वाला यहां पर भी वैलिड है रिमेम्बरेंस के लिए. The third thing important is that in trigonometry, sin square theta plus cos square theta is always equal to 1. And why is that so? Because in any triangle, suppose I have a right angled triangle like this here, so I will find that अगर मैं किसी एक एंगल को थीटा मानता हूँ, let me consider this एंगल लेता हूँ मैं. I have an angle here. This is my theta. तो ये वाली साइड हो जाएगी perpendicular opposite to theta. This would be adjacent to theta is the base, and this would be the hypotenuse. So if I do this, sin square theta हो जाएगा perpendicular upon hypotenuse का square. Cos square theta would be base upon hypotenuse का square, will be equal to 1. Or I can say perpendicular square plus base square would be equal to hypotenuse square. And Pythagoras theorem पे पहुंच गए. So sin square theta plus cos square theta is equal to 1 is another form of the Pythagoras theorem.
द फोर्थ लर्निंग इज दैट एंगल्स की एक डायरेक्शन होती है. In trigonometry, the anti-clockwise direction, the purple direction, is taken as positive direction of angle, and जैसे घड़ी चलती है clockwise direction, that's taken as negative. So clockwise is negative, and anti-clockwise is positive direction. Okay. So if I have हम हमेशा छोटे रास्ते से जाते हैं एंगल, एक ब्लू रे है, एक रेड रे है, तो एक रास्ता है मैं यहाँ से पूरा गोल घूम के जाऊं यहाँ पे, बाकी तो एंगल बड़ा हो जाएगा ना. दिस विल बिकम अ बिगर एंगल. आई डोंट वांट अ बिगर एंगल, आई वांट अ स्मॉलर एंगल. तो स्मॉलर एंगल मेरे को क्लॉकवाइज जाना पड़ता है. तो दिस इज -120 डिग्री. अगर ये ब्लू इज माई इनिशियल रे, ओके, मुझे इनिशियल से फाइनल की तरफ जाना है, तो ब्लू से मैं अगर रेड की तरफ जाता हूं तो आई कम अक्रॉस अ स्मॉलर एंगल दैट इज 60 डिग्री. अगर ऐसे जाऊंगा तो दैट्स -90 डिग्रीज. अगर एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा देन दिस वुड बिकम 270 डिग्रीज. तो 270 डिग्रीज इज क्या, सो 270 डिग्रीज 270 डिग्रीज इज same as -90 degrees. Okay. Then एक मेजर शिफ्ट जो हम कर रहे हैं वो है एंगल इटसेल्फ के अंदर. See, in the SI units, the angle theta is measured not in degrees but in another units called as radians. Radian is an SI unit of angle. बचपन से आप करते आ रहे हो 1 फुल गोल चक्कर इज इक्वल टू 360 डिग्रीज. हमारे पास हमारा ज्योमेट्री बॉक्स है, उसमें भी डी होती है. स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्रीज होता है, फुल एंगल 360 डिग्रीज होता है. तो वो सब आपने अभी तक 10th क्लास तक पढ़ा है. बट वी वांट टू नाउ लीव डिग्रीज. डिग्री हम हमेशा के लिए उसको छोड़ना चाहते हैं और अब हम नया यूनिट अडॉप्ट करना चाहते हैं एंगल का, दैट इज रेडियन. बिफोर वी अंडरस्टैंड रेडियन, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड 360 डिग्रीज हमको पसंद क्यों नहीं है. ओके. और ये भी समझ लेते हैं कि ये हमारे एंसेस्टर्स को ये आइडिया ही कहां से आया कि फुल एंगल को 360 डिग्रीज लेना चाहिए. तो बच्चों, हमारे एंसेस्टर्स जो हैं वो हमारे क्लाइमेट को ऑब्जर्व करते थे, सीजन्स को ऑब्जर्व करते थे. तो उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट अप्रॉक्सीमेटली 360 डेज के बाद सेम सीजन रिपीट होते हैं. तो उन्होंने बोला सब सीजन रिपीट होते हैं, इसी को हमने एक ईयर बोल दिया. सो एक ईयर में उनके हिसाब से 360 डेज होते हैं. और अगर अर्थ सन के चक्कर काटती है तो इसका मतलब 360 दिन के बाद अर्थ सन के उसी लोकेशन पे आ जाती है. तो एक दिन में अर्थ 1 डिग्री आगे जाती है, 360 डेज में 360 डिग्रीज आगे जाती है. ऐसे ही कॉन्सेप्ट ऑफ 360 जनरेट हुआ था. बट ये कॉन्सेप्ट में काफी प्रॉब्लम्स हैं. टुडे विद बेटर कैलकुलेशंस वी नो the earth takes 365 and 1/4 of a day. आपको तो मॉडिफाई करना पड़ेगा कि भाई 1 full circle should be 360 and 1/4 of a day. ये तो फ्रैक्शंस में आ जाएगा, तो गलत हो गया, मतलब हमको पसंद नहीं है. दूसरी प्रॉब्लम है कि अगर मान लो हम अर्थ पे नहीं रहते होते, जस्ट इमेजिन हम मर्करी पे रहते, तो मर्करी तो सन के चक्कर काट लेती है अराउंड 80 डेज में. तो वहां पर गोल चक्कर 80 डिग्री हो जाता, स्ट्रेट लाइन 40 डिग्री होती. अगर हम रहते जुपिटर पे तो हमको तो लग जाते 164 years फॉर 1 गोल चक्कर अराउंड द सन. तो ये प्लैनेट टू प्लैनेट चेंज हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर के साथ चेंज हो जाएगा. ये सब चीजें बदलने वाली, बदलती रहती हैं फिर. बट साइंस बोलती है कि एक चीज को मेजर करने का एक मेथड होना चाहिए, एंड दैट शुड नॉट चेंज इफ यू चेंज अ प्लैनेट और चेंज अ सिचुएशन. तो
तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने एक नया यूनिट इन्वेंट किया है कॉल्ड रेडियन। आओ समझते हैं रेडियन क्या होता है। लेट अस सपोज सेंटर ऑफ अ सर्कल पे एक ऑब्जर्वर बैठा है और वो देखता है एक कार इस सर्कुलर ऑर्बिट में जा रही है। अभी ये कार ए पे है, थोड़ी देर के बाद ये पॉइंट बी पे चली जाती है इस ग्रीन रास्ते को, कर्व को फॉलो करते करते थ्रू एन एंगल थीटा। देन वी से the angle theta in radians is defined to be equal to the length of the arc AB upon the radius. So theta angle की definition है that angle theta in radians is equal to ratio of the length of the arc AB to the radius of that circle. Now if theta is radian, 1 radian would be equal to length of arc AB upon radius. If the length of this arc AB is equal to the radius itself, ये arc ग्रीन रास्ते की लंबाई r हो जाए तो r by r कितना हो जाएगा 1। So हम बोलते हैं यहाँ से डेफिनेशन बनती है हमारी 1 रेडियन क्या होता है फिर 1 रेडियन is the angle subtended by an arc AB whose length is equal to the radius r of that circle। अब आप देख सकते हो रेडियस बड़ा हो जाएगा तो आर्क भी बड़ी हो जाएगी, बट ये जो रेशियो है लेंथ ऑफ द आर्क टू द रेडियस दैट वुड ऑलवेज रिमेन द सेम। ओके, रेडियन एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस तो तभी होती है जब हमको कन्वर्ट करना आ जाए फ्रॉम डिग्रीज टू रेडियंस एंड रेडियंस टू डिग्रीज, तभी हम ओल्ड सिस्टम और न्यू सिस्टम को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आओ देखते हैं। एक गोल चक्कर मतलब ए से चलकर गोल चक्कर काट के वापस ए पे आना, उसको हम पुराने सिस्टम में बोलते हैं 360 डिग्रीज। लेकिन नए सिस्टम में क्या बोलेंगे थीटा इन रेडियंस। ए से चलकर गोल चक्कर काट के ए पे आना, गोल चक्कर ए टू ए, इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। तो व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल आर? So that will be 2 pi r upon r gets cancelled. So we have 360 degrees is equal to 2 pi radians. तो ये important नया बात आपके लिए, that 360 degrees 2 pi radians के इक्वल होता है। और 180 degrees क्या होगा? pi radians। 90 degrees क्या हो जाएगा? pi by 2 radians। 45 degrees would be pi by 4 radians। एंड सो ऑन हम ढूंढ सकते हैं। अगर 180 को मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो 60 बनेगा, ये बन जाएगा पाई बाय 3 रेडियंस। सो अब हैंसफोर्थ आगे की जिंदगी में हम लोग रेडियन ही यूज करेंगे, तो आपको ये कन्वर्शन बच्चों समझ लेना बहुत ही अनिवार्य है। ओके, नाउ लेट अस मूव अहेड। हमने कहा ये 60 डिग्रीज को हम या तो 60 लिखेंगे या अब हम पाई बाय 3 रेडियंस लिखेंगे। तो अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे ऐसे 45 डिग्रीज, तो इसको -45 क्लॉकवाइज है -45 डिग्रीज और माइनस पाई बाय 4 रेडियंस। तो कन्वर्शन जो है वो हमको आना चाहिए। अभी अगर हम पहले ग्राफ्स को देखें, हमारा साइन थीटा का ग्राफ, कॉस थीटा का ग्राफ और टैन थीटा का ग्राफ। क्लास 10th में हम लोग सिर्फ 0 से 90 तक ही हैप्पी थे, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। लेकिन थीटा एंगल जो है वो बच्चों वो तो 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360 और गोल गोल एंगल तो घूमते रहते हैं। तो साइन थीटा का ग्राफ एक ऐसी वेव की तरह होता है। साइन 0 डिग्रीज हम जानते हैं 0 होता है, साइन 90 डिग्रीज +1 होता है, साइन 180 फिर से 0 हो जाता है, साइन 270 डिग्रीज -1 हो जाता है, एंड साइन 360 डिग्रीज फिर से 0 हो जाता है। ये जो रीजन्स हैं ऐसे 0 से लेके और 360, इनको हम अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कार्टेशियन प्लेन, तो ये जो 4 पार्ट्स हैं, 4 को क्वाड बोलते हैं ना, तो ये जो फर्स्ट प्लेन है जिसके एंगल 0 से 90 के बीच में होते हैं,
this is called as the first quadrant. 90 degrees to 180 degrees, this is called as the second quadrant. 180 to 270 is the third quadrant, and 270 degrees to 360 degrees is called as the fourth quadrant. तो हमारे पास हमने क्या पाया, फर्स्ट और सेकंड, ये रहा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. हम देख रहे हैं साइन के ग्राफ में इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इन द सेकंड क्वाड्रेंट, इन दो जगहों पर हमारा साइन थीटा प्लस है और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा माइनस है. येलो येलो, ब्राउन जो मेरा मस्टर्ड है वो तो प्लस है, पिंक पिंक माइनस है. कॉस थीटा का ग्राफ बच्चों ऐसा होता है, cos 0 +1 होता है, cos 90 0 होता है, इस तरह से ग्राफ चलता है. सो cos थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस होता है, सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में ये माइनस होता है. उसी तरह से हम tan की बात करें तो tan जो है वो देखो फर्स्ट में प्लस है और कहाँ पे प्लस है, थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस है, सेकेंड में और फोर्थ में माइनस है. ये ग्राफ है tan थीटा का ग्राफ ऐसा होता है. tan 0 0 होता है और tan 90 इन्फिनाइट होता है, तो ये बहुत दूर ऊपर चल जाता है. sin 90 डिग्रीज इज इनफाइनाइट. tan 270 डिग्रीज, tan पाई मतलब 180 डिग्रीज वापस 0 हो जाता है. तो इस तरह से ग्राफ इनका भागता है. तो हमने क्या देखा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं देखूं साइन भी प्लस है, कॉस भी प्लस है और tan भी प्लस है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे प्लस हैं. प्लस क्यों है उसको समझने के लिए हमको जरा इस पिक्चर को देखते हैं. अगर हमारा कोई एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ऐसा ब्लू ट्रायंगल बनेगा. हम देख सकते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, x भी प्लस है, y भी प्लस है, बेस भी पॉजिटिव, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव. सो देयरफॉर किन्हीं दो का रेशियो लूंगा, प्लस बाय प्लस लूंगा, वो प्लस ही आएगा. तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में all are positive. In the second quadrant my base has become negative, perpendicular अभी भी ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव है. तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो प्लस ही आएगा क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, ऊपर है, वाई एक्सिस की तरफ है, और हमारा हाइपोटेन्यूज भी जो है वो पॉजिटिव है. हाइपोटेन्यूज हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं. और फिर हम देखेंगे क्या, दैट सिर्फ साइन थीटा और उसका इन्वर्स कोसेकेंट थीटा वो प्लस होते हैं इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो अब देखो ये ट्राइंगल पिंक वाला बन गया, बेस भी नेगेटिव है, परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है. तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नेगेटिव डिवाइड बाय नेगेटिव विल बी पॉजिटिव. सो tan थीटा एंड उसका इनवर्स cot थीटा दोनों प्लस होते हैं इन द थर्ड क्वाड्रेंट. अगर मैं बात करूं फोर्थ क्वाड्रेंट की तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बेस पॉजिटिव है लेकिन परपेंडिकुलर नीचे की तरफ आया है, माइनस p है. तो यहां पर cos थीटा एंड उसका इनवर्स सेकेंड थीटा ये दो पॉजिटिव होते हैं. इसको याद रखने का ढंग है ऐड शुगर टू कॉफी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज. आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए का मतलब ऑल आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, शुगर s, स्कूल s, साइन थीटा एंड उसका इनवर्स कोसेकेंट थीटा वो प्लस होते हैं सेकंड में. थर्ड में t टू कॉलेज, t फॉर tan प्लस होता है यहाँ पे. और फोर्थ क्वाड्रेंट में c फॉर कॉफी और कॉलेज, उसके अंदर cos हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा cos जो है वो और उसका भाई सेकंड प्लस होते हैं, बाकी सब उनमें नेगेटिव होते हैं. तो ये सॉन्ग भी हमको काफी काम का है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या एड शुगर टू कॉफी. नाउ तो हम देख सकते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो साइन कहाँ प्लस है,
तो यहाँ पे मैं लेट मी यूज अनदर पेन, I can write A, all are positive here. After school to college, or add sugar to coffee. So we find that we have sine is positive in the second quadrant, tan is positive in the third quadrant, cos is positive in the fourth quadrant, and all are positive in the first quadrant. ओके, सो यहाँ पे देखो साइन के बारे में बात करते हैं, कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, फर्स्ट और सेकंड में। देखो फर्स्ट में भी पॉजिटिव और सेकंड में भी पॉजिटिव, बाकी दो में नेगेटिव। कॉस की बात करें, कॉस कहाँ कहाँ प्लस है, फर्स्ट में और फोर्थ में। देखो यहाँ पे फर्स्ट में पॉजिटिव कॉस और फोर्थ में पॉजिटिव, सेकंड और थर्ड में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है। टैन कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, फर्स्ट में और थर्ड में। देखो ये रहा फर्स्ट में पॉजिटिव और थर्ड में पॉजिटिव, राइट। टैन सेकंड में और फोर्थ में टैन की वैल्यू नेगेटिव। तो ये ग्राफ की फिर से इंपॉर्टेंस बन जाती है इस आफ्टर स्कूल टू कॉलेज को भी समझने के लिए। नाउ ये जो क्विक रिवीजन जो आपको ऑलरेडी आता है क्लास 10 से, बट जस्ट इन केस भूल गए हो, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ सम कॉमन एंगल्स, 0 डिग्रीज, 30, 45, 60, 90। कैसे याद रखते थे, मैंने सिखाया था आपको। हम काउंटिंग लिखते हैं, होल नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, सबको 4 से डिवाइड करते हैं और सबका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 0/4 इज 0, 0 का अंडर रूट इज ऑल्सो 0, तो साइन 0 डिग्रीज इज 0। साइन 30 डिग्रीज इज 1/2, स्क्वायर रूट लूंगा तो साइन 45 विल बी 1/√2, साइन 60 डिग्रीज विल बी √3/2 एंड साइन 90 विल बी 1। कोसाइन थीटा उल्टा होता है 90, उल्टा नंबर लिखने स्टार्ट करो, पहले 1 यहाँ आएगा, 1 गया यहाँ, √3/2 इधर, फिर 1/√2 तो वहीं आया, और 1/2 गया इधर, और 0 गया घूमकर इधर। उल्टा लिख दो नंबर्स को तो वो हो जाती है वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। टैन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, एंड टैन थीटा विल बी 0/1 is 0, 1/2 divided by √3/2, 2 cancel, 1/√3 बचेगा, 1/√2 divided by 1/√2 will be 1, and √3/2 divided by 1/2 will be √3, and 1 divided by 0, anything divided by 0 is infinite. So we have this table. कुछ दो एंगल्स हैं वो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज 37 डिग्रीज एंड 53 डिग्रीज। 37 डिग्रीज पे क्या होता है, लेट्स लुक एट दिस। एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ये 37 है, ये 53 है, ऑफ कोर्स ये 90 है। तो ये जो साइड्स होती है ना, इनका रेशियो होता है 37 के ऑपोजिट वाली साइड 3 होती है, 53 के ऑपोजिट साइड वाली 4 होती है, और 90 के ऑपोजिट 5 होती है ना। यू नो स्मॉल एंगल के सामने स्मॉल साइड, बिग एंगल के सामने बिग साइड। तो अगर कोई 37 के लिए पूछते हैं व्हाट इज साइन 37, साइन 37 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो साइन 37 विल बी 3/5, cos 37 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5, tan 37 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, है ना। तो यही है कहानी हमारी। 37 में साइन 37 is 3/5, cos 37 is 4/5, tan 37 is 3/4। ऐसे ही 53 का अगर करें, 53 cos 53 will be 3/5, चेक करते हैं, cos 53 is 3/5। इस तरह से भी कर सकते हैं आप। तो हमको ये ट्राइंगल 37 53 का आना चाहिए, क्योंकि ये रेशियो सारे हमारे बड़े अच्छे नंबर्स आते हैं, इजीली मैनेजेबल होते हैं, 3/4, 3/5 एंड सो ऑन। तो कई सारे न्यूमेरिकल्स में ये वाले एंगल्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये हमको आना चाहिए 37 डिग्रीज का
जो ट्राइंगल होता है उसकी साइड्स होती हैं 3, 4, 5, राइट एंगल ट्राइंगल बनता है ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। राइट, तो अब हम जो सीखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स आपके साथ कि 90 तक का तो चलो हमको पता है, बट हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज when the angles are other than 90 degrees, right? तो एंगल्स कैसे हो सकते हैं? हमने कहा हमारे एंगल्स जो हैं वो हो सकते हैं स्टाइल के। Just taking a pause. ओके, सो हमने कहा कि अलाइड एंगल्स जो हैं उनको, अलाइड एंगल्स क्या होते हैं? वो एंगल्स जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द स्टाइल 90 डिग्रीज प्लस और माइनस थीटा, 270 डिग्रीज प्लस और माइनस थीटा, 180 डिग्रीज प्लस और माइनस थीटा और 360 डिग्रीज प्लस और माइनस थीटा, वेयर थीटा शुड बी बिटवीन 0 डिग्रीज टू 90 डिग्रीज। सो फॉर एग्जाम्पल 120 डिग्री को हम दो ढंग से लिख सकते हैं, 90 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज और 180 डिग्रीज माइनस 60 डिग्रीज। इसको मैं बोलूंगा स्टाइल ए, इसको बोलूंगा मैं स्टाइल बी। स्टाइल ए वो एंगल्स होते हैं जिनको 90 प्लस माइनस के फॉर्म में लिखते हैं या 270 प्लस माइनस के फॉर्म में लिखते हैं। तो इधर वाले 90 एंड 270 ये जो है ये मेरा स्टाइल ए है। ओके, स्टाइल बी ऑन द अदर हैंड इज दीज एंगल्स विच आर ऑफ द टाइप 180 डिग्रीज प्लस माइनस थीटा और 360 डिग्रीज प्लस माइनस थीटा। ओके, तो ये बंद होगा, हाँ यहां से होगा। ओके, सो ये जो है हमारे पास ये स्टाइल बी है हमारा। अब हम कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारे पास एक्सप्रेस ऑल द अलाइड एंगल्स एज आइदर ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए ये और ग्रुप बी ये, पहला स्टेप ये है। फिर अगर ग्रुप ए है या ग्रुप बी है तो ये देखो, अगर ग्रुप ए होगा 90 और 270 वाले एंगल होंगे तो कन्वर्शन टेक्स प्लेस। कन्वर्शन का मतलब साइन बन जाता है कॉस और कॉस बन जाता है साइन, सीकेंट बन जाता है कोसीकेंट एंड ऑल्सो रिवर्स, टैन का कॉट बनता है, कॉट का टैन बनता है। और अगर हमारे एंगल्स ग्रुप बी स्टाइल के हों, 180 और 360 वाले स्टाइल हों प्लस माइनस थीटा, तो कोई कन्वर्शन नहीं होता, साइन साइन रहता है, कॉस कॉस रहता है, टैन टैन, सब जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। थोड़ा एग्जाम्पल करेंगे तो अच्छे से और समझ आएगा। फिर एक और स्टेप होता है स्टेप 3, टू डिटरमिन कि आंसर प्लस आएगा कि माइनस आएगा। आंसर प्लस आएगा कि माइनस आएगा उसके लिए जो मैंने भी आपको पीछे सिखाया है ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो प्लस माइनस यहां से डिसाइड होता है। और इसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है स्टार इंफॉर्मेशन, लुक एट द क्वेश्चन एंड नॉट एट द आंसर व्हेन यूजिंग द क्वाड्रेंट रूल। क्वेश्चन को देखो, आंसर को नहीं। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, मैं अभी एग्जाम्पल करता हूं, आपको अच्छे समझ आ जाएगा। मान लीजिए कोई मुझे बोलता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्रीज। अब बोलोगे सर हमको तो 30 की आती है, 120 की नहीं आती। मैं बोलूंगा कोई बात नहीं, 120 को लिख सकते हैं ना साइन ऑफ 90 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज, या 120 को लिख सकते हैं साइन ऑफ 180 डिग्रीज माइनस 60 डिग्रीज। अगर इस स्टाइल में लिखा तो ये स्टाइल ए हो गया, इस स्टाइल में लिखा तो स्टाइल बी हो गया। स्टाइल ए में क्या होता है? कन्वर्शन होता है। साइन का क्या बनता है? कॉस। अब आप क्या करो, कॉस लिख लो, साइन का कॉस लिखो और 90 को भूल जाओ, अब लिखो सिर्फ 30, कॉस 30। ठीक है, अब देखो 120 कौन से क्वाड्रेंट में है? 120 90 से बड़ा होता है, 180 से छोटा होता है, तो ये डॉटेड वाला क्वाड्रेंट है सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, दैट मीन्स स्कूल एस। ये तो कॉस है, ये तो साइन, लेकिन हमने आंसर, ये आंसर है, आंसर को नहीं देखना, किसको देखना है? क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? साइन। साइन तो प्लस होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसलिए मैं प्लस साइन लगाता हूं, दैट मीन्स साइन ऑफ 90 प्लस 30
और साइन 120 डिग्रीज इज इक्वल टू प्लस कॉस 30 डिग्रीज, और कॉस 30 डिग्रीज तो होता है बच्चों प्लस √3/2। ठीक है, अगर मैं स्टाइल बी में जाता साइन 180 - 60, तो अब कन्वर्शन नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा। अब 180 को भूल जाओ, सिर्फ 60 लिख दो, साइन 60। और क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, तो हमने कहा प्लस आएगा, प्लस साइन 60। और साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है। तो चाहे आप स्टाइल ए से जाओ या स्टाइल बी से जाओ, दोनों में आंसर सेम आता है। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्रीज इज √3/2। ठीक है, आ जाओ एक और देखते हैं एग्जाम्पल। व्हाट इज कॉस 240 डिग्रीज? अब 240 डिग्रीज कहाँ है? 180 से बड़ा है, 270 से छोटा है, तो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ। थर्ड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कौन प्लस होता है? टैन और कॉट। क्वेश्चन को देखते हैं। कॉस 240 को हम लिख सकते हैं या तो कॉस 180 + 60 या कॉस 270 - 30। ऑलराइट, अगर ये होगा 270 - 30, ये तो स्टाइल ए हो गया, और 180 + 60 स्टाइल बी हो गया। स्टाइल ए में कन्वर्शन होता है, स्टाइल बी में कन्वर्शन नहीं होता। तो हम लिखेंगे cos 180 + 60 को लिखेंगे cos सिर्फ 60, 180 को भूल जाएंगे, cos 60। अब देखेंगे प्लस आएगा कि माइनस। क्वेश्चन तो है cos और हमारा एंगल है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan प्लस होता है, cos प्लस नहीं होता है। तो फिर cos क्या होता है? cos यहाँ पर माइनस होता है। तो इसका मतलब cos of 240 डिग्रीज इज इक्वल टू माइनस cos 60। cos 60 तो 1/2 होता है, तो cos 240 इज देयरफॉर -1/2। दूसरे स्टाइल से करते हैं। अब हमको बेसिकली दोनों में से कोई एक स्टाइल यूज करना होता है, जो भी आपको अच्छा लगे। मैं आपको दोनों दिखा रहा हूं ताकि आपको प्रूव हो जाए कि दोनों स्टाइल से आंसर सेम आता है। cos 270 डिग्रीज -30 भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर 270 हो तो कन्वर्शन होगा, cos का क्या बनेगा? साइन, ये बन जाएगा साइन 30 डिग्रीज। और क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan प्लस होता है, ये तो cos है, इसलिए यहाँ लिखेंगे माइनस साइन 30, माइनस आएगा साइन। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज डिसाइड करता है प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो माइनस साइन 30। साइन 30 1/2 होता है, माइनस भी आ गया तो -1/2। तो आप देख सकते हैं दैट दोनों ही मेथड्स के साथ वी गेट द सेम वैल्यू ऑफ cos 240 एंड दैट इज -1/2। ऑलराइट, ओके। सिमिलरली अब आप खुद करो इसको, मैं आपको सिर्फ पिक्चर दिखा रहा हूं, बोल नहीं रहा हूं। tan 330 को देखो 270 + 60। पॉज कर सकते हैं वीडियो को और चेक करो, समझ आया? मैं बोलना बंद करता हूं। आओ हम देखते हैं सारे के सारे 6 रेशियोज। साइन ऑफ 90 + थीटा। 90 + थीटा कहाँ है? ये तो रेड एरिया है ना। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पर कौन प्लस होता है? साइन प्लस होता है। कन्वर्शन होगा कि नहीं होगा? कौन सा स्टाइल है? ए स्टाइल के बी स्टाइल? स्टाइल ए, 90 + थीटा। तो साइन का क्या बनेगा? कॉस थीटा, कॉस का साइन थीटा, टैन का कॉट थीटा, तो सीकेंड का सीकेंड थीटा, सीकेंड का कोसीकेंड थीटा, कॉट का टैन थीटा। पहले तो कन्वर्शन लिख दो, प्लस माइनस बाद में सोचेंगे। ये सब लिखने के बाद अब आप देखो इस गाने को, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कौन है यहाँ पे? साइन एंड उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंड, ये प्लस होते हैं। लेकिन किसको देखते हैं? क्वेश्चन को कि आंसर को? क्वेश्चन को। क्वेश्चन है यहाँ पे साइन, तो साइन को प्लस कर दो, और कोसिकेंड ये भी प्लस है, बाकी सबको माइनस। तो 2 प्लस है और 4 हमारे माइनस है। ठीक बात। अगर हमको करना होता 180 - थीटा, सारे 180 - थीटा कर रहा हूँ, साइन कॉस टैन कॉट कोसिकेंड टैन सीकेंड। कौन सा स्टाइल है? स्टाइल ए कि स्टाइल बी? स्टाइल बी। स्टाइल बी में कन्वर्शन होता है कि नहीं होता? नहीं होता। तो साइन 180 - थीटा का बन जाएगा साइन थीटा, इसका बन जाएगा कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसिकेंड थीटा, सीकेंड थीटा। फिर नेक्स्ट स्टेप सोचना, प्लस आएगा कि माइनस। 180 - थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड है।
सेकंड में कौन प्लस होता है? साइन और कोसेकेंट। क्वेश्चन को देखना है कि आंसर को, क्वेश्चन को यहाँ पे देखो, साइन ये और कोसेकेंट ये, इन दोनों के आंसर्स प्लस होंगे, बाकी सबके माइनस होंगे। ठीक है, सब नोट भी करना है आपको कॉपीज में, राइट। तो 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। कौन कौन प्लस होता है? टैन और कॉट। टैन और कॉट का प्लस है, बाकी सबका माइनस। कन्वर्शन होगा कि नहीं होगा? 180 है तो कन्वर्शन नहीं होगा। 180 प्लस थीटा की जगह अब क्या आएगा? साइन ऑफ थीटा। तो ये माइनस साइन तो उस आफ्टर स्कूल टू कॉलेज की वजह से है। ठीक है, समझ आ रहा है? 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है? टैन और कॉट। कन्वर्शन होगा कि नहीं होगा? 270 है तो होगा। साइन का क्या बनेगा? कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, कोसेकेंट का सिकेंड, सिकेंड का कोसेकेंट। फिर डिसाइड करना है प्लस के माइनस। सिर्फ टैन और कॉट प्लस होते हैं, तो ये देखो एरो बनाया मैंने, टैन और कॉट, इनके आंसर्स प्लस होंगे, बाकी सबके आंसर्स माइनस हो जाएंगे। तो साइन 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ऐसे ही 270 प्लस थीटा को कर सकते हैं, कन्वर्शन होगा, लेकिन अब कौन जाएगा कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ में। फोर्थ में कौन प्लस होता है? फोर्थ में कौन कौन प्लस होता है बच्चों? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कॉस और सीकेंड। ये रहा मेरा कॉस और ये रहा मेरा सीकेंड, ये दोनों मेरे प्लस हैं देखो, बाकी सब मेरे माइनस है। क्वेश्चन को देखते हैं, राइट, क्वेश्चन को देखते हैं। तो ऐसे ही हम कर सकते हैं 360 माइनस थीटा, वो भी फोर्थ क्वाड्रेंट है, लेकिन कन्वर्शन अब की बार नहीं होगा। साइन 360 माइनस थीटा बन जाएगा माइनस साइन थीटा एंड सो ऑन। ठीक है, सो इस तरह से हमने कन्वर्शंस सीखा, हाउ टू कन्वर्ट allied angles, angles which have a value bigger than 90 degrees, and 360 plus theta। वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो में तो कन्वर्शन नहीं होता और सबके सब प्लस होते हैं। 360 प्लस थीटा सारे के सारे पॉजिटिव हैं। ओके, कुछ फॉर्मूलाज ट्रिग्नोमेट्री के वो भी हमारे काम के हैं। ऐसे तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, लेकिन the ones that are important to us, useful to us, only that we are discussing। एक हम आपके साथ कर चुके हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो तो 1 होता है। अब हम एक साइन 2 थीटा एंगल की बात कर रहे हैं। साइन 2 थीटा होता है ट्वाइस ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। वेरीफाई कर सकते हैं, लेट अस सपोज थीटा इज 30 डिग्री, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ 30 60, साइन 60 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन 30 इंटू कॉस 30। चेक करते हैं कि सही है क्या। साइन 60 होता है √3/2, 2 की जगह 2। साइन 30 हमारा 1/2 होता है, जबकि cos 30 √3/2 होता है। सो 1 2 से कैंसिल हो गया। √3/2 इज इक्वल टू √3/2, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस दिस फॉर्मूला is right, this formula sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta is right। Similarly, we have formula for cos 2 theta। cos 2 theta होता है cos square theta minus sin square theta। cos 2 theta का फॉर्मूला cos square theta minus sin square theta। अगर प्रूफ देखना चाहो, और उसके यहाँ और भी स्टाइल है, ये 3 स्टाइल है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 cos square theta minus 1। कैसे किया? मेन फॉर्मूला यही वाला है, cos square theta माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और cos square theta को हम लिख सकते हैं ना, ये तो फॉर्मूला है ही है, sin square theta plus cos square theta is 1। so cos square theta can be written as 1 minus sin square theta। वही किया मैंने, cos square theta की जगह लिख दिया 1 minus sin square theta। minus sin square theta and minus sin square theta will become minus 2 sin square theta। हमारा ये फॉर्मूला आ गया। सो cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला 1 minus 2 sin square theta। अभी हमने cos square theta का सब्स्टिट्यूशन किया था, लेट अस सब्स्टिट्यूट फॉर sin square theta। sin square theta की जगह क्या लिखूंगा मैं? 1 minus cos square theta। दिस विल बिकम माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, विल 2 cos square theta minus 1। तो 3 फॉर्मूला है cos 2 थीटा के।
ये रेड में लिखे हमने, राइट। फिर मेरे जो ये एक सेट ऑफ फॉर्मूलाज आखिरी वाले जो इंपॉर्टेंट हैं वो है साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है? 2 साइन ऑफ ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाय 2। फॉर्मूलाज आप प्लीज नोट करेंगे। साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाय 2। अब देखिए स्टाइल, देखिए ये साइन ए प्लस साइन बी है, या साइन ए माइनस साइन बी है। इन सब में स्टार्टिंग में 2 आता है, फिर साइन आता है या कॉस आता है। एक एंगल है ए प्लस बी बाय 2 और दूसरा है ए माइनस बी बाय 2, सबके अंदर है ना। सो ए प्लस बी बाय 2 एंड ए माइनस बी बाय 2 स्टाइल्स हैं ये। साइन ए माइनस साइन बी में पहले कॉस आता है, बाद में साइन आता है। साइन ए प्लस साइन बी में पहले साइन आता है, बाद में कॉस आता है। कॉस ए प्लस कॉस बी में ट्वाइस ऑफ दोनों कॉस आते हैं, कॉस कॉस। कॉस ए माइनस कॉस बी में दोनों साइन साइन आते हैं। तो साइन ए प्लस साइन बी में पहला साइन दूसरा कॉस, साइन ए माइनस साइन बी में पहला कॉस दूसरा साइन, कॉस ए प्लस कॉस बी में दोनों कॉस कॉस, और कॉस ए माइनस कॉस बी में एक तो -2 भी आता है, -2 साइन ऑफ ए प्लस बी बाय 2 इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी बाय 2। अगर आप वेरीफाई करना चाहें इनको तो आप क्या करें, दैट कंसिडर एंगल ए टू बी 90 एंड बी टू बी 30। ए को 90 और बी को 30 मान लो, और a प्लस बी बाय 2 क्या हो जाएगा, 90 प्लस 30 120 बाय 2 60, एंड a माइनस बी क्या हो जाएगा, 90 माइनस 30 60 बाय 2 दैट इज 30। तो आप इनके साथ आप इनको वेरीफाई कर सकते हैं इन 4 फॉर्मूलाज को। इनमें से ये जो उनमें स्टार लगाया है मैंने, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइन ए माइनस साइन बी एंड कॉस ए माइनस कॉस बी, राइट। तो आप वेरीफाई करें, मैंने एक आपके सामने यहाँ पे किया है बोर्ड पे, प्लीज़ आप उसको देख सकते हैं। ए को 90 लिया है, बी को 30, और हमारा LHS RHS के इक्वल आ रहा है। ये फॉर्मूलाज हमारे सही हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट for today in the physics class of trigonometry. Please note it down whatever you understood. We'll see you up with another mathematical tool in the next class. Senorita, bye bye.